Hello dear kids, a very warm welcome to the maths class. I am sure you all are good, happy and cheerful at your home, enjoying your online classes. Children, the way we are interacting with each other, जैसे आप लोग टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, क्लासेस अटेंड करते हो, इन द सेम मैनर यू कैन इंटरैक्ट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इन द ऑनलाइन क्लासेस. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऑनलाइन क्लासेस में बात कर सकते हो. ओके, आई एम श्योर यू ऑल आर इन अ हैप्पी and cheerful mood to see the video, to attend the class. So, I will start the class now. This is our maths class and our maths book is Perfect Composite Mathematics. You all know it by now. अब तक तो सबको पता चल गया होगा. We are doing chapter number 6, which is working with numbers till 20. This is our maths class and we are doing chapter 6. Okay, in this chapter till now we have done mainly making a collection of 110. That means writing the numbers in expanded form in ones and tens. Then we have done addition, vertical addition, addition on number line. Okay, all the topics, ये जितने भी सारी चीजें हैं, we have done earlier also in previous chapters also. The only difference is that in this chapter we are working on numbers till 20. मतलब इस चैप्टर में हम 11 से लेकर के 20 तक के नंबर्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं. सो देयरफॉर जो भी एडिशन हम कर रहे हैं, द सम इज 10 और मोर देन 10. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. सब चीजें हमने पहले की हैं. सो मेनली इन दिस लेसन जो हमने एक नई चीज की है वो है राइटिंग द नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म. दिस वी हैड नॉट डन अर्लियर. पहले हमने नहीं किया था. वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. राइटिंग एनी नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म मीन्स राइटिंग द नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस. लाइक द नंबर 18. इन एनी नंबर देयर आर डिजिट्स. So this number 18, it is a 2-digit number. The digit 8 is at 1's place and the digit 1 is at 10's place. Okay? So how do we write this in expanded form? 1, 10, 8, 1's. That is all. इस लेसन में हमने एक नई चीज क्या किया? We made a collection of 110. पहले हमने एक 110 का एक कलेक्शन बनाया, तो दैट इज 110. और उस कलेक्शन के बाद 110 का एक कलेक्शन बनाने के बाद जितनी भी ऑब्जेक्ट्स बची, दैट इज वंस. सो दिस इज समथिंग न्यू विच वी हैव डन इन दिस लेसन. इस चैप्टर में अभी तक हमने जो एक नई चीज की है. ओके, सिंस वी आर वर्किंग विथ नंबर्स फ्रॉम 11 to 20 and these are 2-digit numbers. Therefore, it is important that you know the places. हर एक नंबर की प्लेस होती है. प्लेस इज फिक्स्ड. प्लेस अपने से कभी चेंज नहीं होती है. वंस प्लेस, टेंस प्लेस, फिर इसके आगे जैसे जैसे और प्लेसेस बढ़ती जाएंगी, द प्लेसेस विल रिमेन द सेम. द प्लेसेस विल नॉट चेंज. चेंज क्या होगी? वहां पे डिजिट. जो भी नंबर है उस नंबर में जो भी डिजिट है, दैट डिजिट विल चेंज. प्लेस विल नॉट चेंज. ओके, सो दिस इज समथिंग न्यू विच वी हैव डन.
we have done addition on number lines also, and we have done vertical addition also. Vertical addition means writing the numbers one below another. Okay? Vertical addition का क्या मतलब है? Vertical addition का मतलब है कि एक के नीचे एक नंबर लिखना. Since we are working with 2-digit numbers, so we have done vertical addition also. And I hope it is clear to everyone. Now today I will start with adding 3-digit numbers. Today we will start with adding three numbers. Not 3-digit numbers, I am sorry. It is adding 3 numbers, all 1-digit numbers. Today we will start with adding 3-digit numbers, and these numbers are all 1-digit numbers. 1 digit, that means single digit number. That is numbers from 1 to 9. So today I will start with addition of 3 numbers, but all 1-digit numbers. 1 digit 3 numbers. अभी हमने क्या किया था? Till now we have done addition of 2 digits. ठीक है? Addition of 2 numbers. So 2 plus 6, 5 plus 1, ठीक है ना? 3 plus 0, और vertical addition अगर हम लिखें. So we have done till now addition of 2 numbers. Today we will start with addition of 3 numbers. ठीक है? 3 numbers का हम addition start करेंगे. Now see, suppose you have to add 2 plus 1 plus 4. Okay? 2 plus 1 plus 4. Suppose you have to add these 3 numbers. 2 plus 1 plus 4. Okay? So when we are adding 3 numbers, what do we do? जब हम 3 numbers को add करते हैं, तो we first add 2 numbers. पहले हम 2 numbers को add करते हैं, फिर उनका जो sum आता है, उसमें 3rd number को add करते हैं. If you wish, you can add all the 3 numbers together also. अगर आप कर सकते हो. Now when we write the numbers in vertical form, हम ऐसे लिखते हैं. We write it like this. 2 plus 1 plus 4 ऐसे लिखा. अभी अगर आप चाहो तो लाइंस खींच के भी हम एक बार में भी पूरा एडिशन कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. So answer is 7. But we will not do it like this. हम पहले करेंगे. First we will add the first and second number. Since we have to add 3 numbers, so we will start with adding first and second number. हम पहले first and second number को add करेंगे. Now the first number is 2 and the second number is 1. So we will start with addition of 2 and 1. So 2 plus 1 is equal to, कितना हो गया? 2 plus 1 is equal to 3. 2 and 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3 आएगा. And in this 3, first and second number को ऐड करने पे जो भी आंसर आता है, in this answer we will add the third number. So third number is 4. So 3 में हम किसको ऐड करेंगे? We will add 4 and 3. So 3 plus 4, 1 2 3, 1 2 3 4. So 1 2 3 4 5 6 7. So 3 plus 4 is equal to 7. So that means 2 plus 1 plus 4 is equal to 7. ठीक है. एडिशन जैसे मैंने बताया है, you have to add 3 numbers. अभी आप फर्स्ट सेकेंड नंबर को ऐड करके फिर उसके आंसर में थर्ड नंबर ऐड करो, और यू फर्स्ट ऐड सेकेंड एंड थर्ड नंबर, उसका जो सम आता है उसमें आप फर्स्ट नंबर ऐड करो, या फर्स्ट और थर्ड नंबर पहले ऐड करके उसके सम में सेकेंड नंबर ऐड करो.
or you add all the three numbers together, the answer will always remain the same. There will be no change in the answer. आप कैसे भी एडिशन करो, एडिशन में आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, आंसर सब में सेम रहेगा. बिकॉज वी आर एडिंग. अभी आप फर्स्ट सेकेंड नंबर को पहले ऐड करके उसमें थर्ड नंबर ऐड करो, और यू ऐड सेकेंड एंड थर्ड नंबर, फिर उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करो, और यू ऐड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, उसका जो सम आया उसमें सेकेंड नंबर ऐड करो, आंसर वही रहेगा. किसी को भी आप पहले काउंट करो. बट सिंस अभी आप लोग यू आर वेरी स्मॉल, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट नहीं हो, इसीलिए हम पहले फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को ऐड करेंगे. हियर आई हैव एडेड 2 + 1. 2 + 1 इज 3. इस 3 में हमने थर्ड नंबर दैट इज 4 को ऐड किया. सो 3 + 4 इज इक्वल टू 7. सो दिस इज हाउ वी ऐड 3 numbers. So all the 3 numbers are single digit numbers. सब single digit numbers का भी हम एडिशन कर रहे हैं. Now let us see here. यहाँ पे हमने जब 3 numbers को ऐड किया तो आंसर भी उनका जो टोटल आया दैट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, वो हमने इसके नीचे लिखा. Now what happens if the sum of these 3 numbers is a 2-digit number? अगर ये 3 numbers को ऐड करने पे इनका जो सम आता है दैट मीन्स द आंसर. व्हेन वी ऐड 2 numbers और 3 numbers, जब हम एडिशन में जो भी आंसर आता है दैट आंसर इज नोन एज द सम. ओके, सो व्हेन वी ऐड these 3 numbers, if the answer is 10 or more than 10, then how do we write it? बस एग्जाम्पल करके देखते हैं. Now let us suppose we have to add suppose we have to add 6 + 1 + 7. Okay, we have to add 6 + 1 + 7. We have to add these 3 numbers. So how do we start? The first step is adding first and second number. पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड करें. So let us add first and second number. 6 + 1. जब हमने फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को ऐड किया तो व्हाट डू वी गेट? क्या आंसर मिला हमें? 6 + 1 इज इक्वल टू 7. ठीक है, 6 + 1 कितना आया? 7 आया. अभी ये हमने ऐड कर लिया, ये दोनों नंबर्स को तो हमने ऐड कर लिया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 7. थर्ड नंबर बचा है, तो अभी इस 7 में हम ये वाला 7 ऐड करेंगे. तो 7 + 7, 1 2 3 4 5 6 7, and 1 2 3 4 5 6 7. What is the answer? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So when we add 7 + 7, the answer is 14. Now how do you write this 14? ये 14 अभी आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे whether you will write it like this or you will write it like this, which is the correct answer, which is the correct way. Now in this number 14, इस number 14 में there are 4 ones and 1 10. जैसे मैंने बताया कि number 10 से लेकर number 19 तक all the numbers have only 1 10. ठीक है ना? So in this number 14 also there is 1 10 and 4 ones. So when we write the answer here, the digit at one's place which is 4, इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम यहीं पे लिखेंगे, because this is a single digit number. That means only one's place is there. 7 is a single digit number. This 7 is a single digit number. और single digit का number का मतलब क्या होता है? कि only one's place is there, tens is not there.
सिंगल डिजिट नंबर का मतलब यही हुआ ना कि वंस प्लेस है, टेंस नहीं है, ठीक है। तो 7 + 7 इज इक्वल टू 14। सो वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको हम वंस प्लेस के नीचे लिखेंगे एंड दिस वन विल बी रिटन हियर। इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखोगे 7 के नीचे 1 तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। When we are adding टू सिंगल डिजिट नंबर्स, जब हम टू सिंगल डिजिट नंबर्स को ऐड करते हैं और उनका जो आंसर है सम है, अगर वो 10 या 10 से ज्यादा आता है, दैट मीन्स इफ इट इज अ टू डिजिट नंबर, तब हम उसकी जो वंस प्लेस की डिजिट है उसको वंस प्लेस के नीचे लिखते हैं और टेंस प्लेस की डिजिट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो लेट अस डू फ्यू मोर एग्जांपल्स, और हम जब सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। Suppose we have to add 4 + 7 + 8. 4 + 7 + 8 हमें ऐड करना है। So the first step is we will add 4 and 7. तो 4 + 7 कितना हुआ आंसर? 7 + 4 7, 8, 9, 10, 11। 4 में 7 ऐड करना है तो 4 में आप 7 ऐड कर सकते हो और 7 में 4 ऐड करना है। दोनों का आंसर तो सेम आएगा ना, बिकॉज वी आर एडिंग 4 and 7। 4 में 7 ऐड करना है तो 4 के बाद हम कितने तक फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे? वी विल काउंट 7 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो 4 + 7 इज इक्वल टू 11। अभी इस 11 में हमें क्या ऐड करना है? 8। 11 + 8. 8 + 1 is 9 and 1. So 4 + 7 + 8 is equal to 19. You can straight away write like this also. ठीक है? आप चाहो तो जैसे मैंने बताया, if you wish you can add all the 3 numbers together. ठीक है? But फर्स्ट पहले तो हमें 2 नंबर्स को काउंट करना होगा और यू कैन ड्रॉ लाइन्स 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ काउंट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आंसर विल रिमेन द सेम। ओके, सो आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। सो लेट अस डू द एक्सरसाइज नाउ। Four plus 6 plus 4. 4 + 6 + 4. So first we will add 2 numbers. पहले हम 4 and 6 को ऐड करेंगे तो 4 + 6 is 4 + 6 कितना होगा? 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 4 + 6 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 + 6 is 10 and इस 10 में हमने 4 और ऐड किया तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14। और you can count the numbers without drawing lines also. फॉरवर्ड काउंटिंग हम करते हैं एडिशन में। तो 4 में पहले 6 ऐड करना है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आया। नाउ 10 में 4 ऐड करना है तो वी विल काउंट 4 स्टेप्स ahead। 10 में 11, 12, 13, 11, 12, 13 and 14. So 4 + 6 + 4 is equal to 14. Now the question is, how do you write the answer? These are single digit numbers and the sum 14 is a 2-digit number. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें वंस प्लेस पे क्या है? 4 है एंड टेंस प्लेस पे 1 है।
सो दिस 4, ये वाला जो वंस प्लेस का जो 4 है उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इन नंबर्स के नीचे, बिकॉज ऑल द 3 नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर। ये सारे जो 3 नंबर्स हैं ये क्या है, ये सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। ओके, सो सिंगल डिजिट नंबर्स मीन्स ओनली वंस प्लेस इज देयर। सिंगल डिजिट नंबर में टेंस प्लेस नहीं होती है, ओनली वंस प्लेस इज देयर। सो व्हेन वी राइट द सम, जो सम की जो वंस प्लेस की डिजिट है उसको हम इन डिजिट्स के नीचे लिखेंगे, और जो टेंस प्लेस की डिजिट है दैट इज 1, दैट वी विल राइट हियर। सो द आंसर इज 14. ओके, add 3 plus 8 plus 2. 3 plus 8 plus 2. So पहले first we have to add 3 and 8. हमें 3 में 8 ऐड करना है, तो 3 में 8 ऐड करो। 3 में 8 ऐड करना, that means we have to do forward counting। 8 स्टेप्स की हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, बिकॉज 3 में 8 ऐड करना है, तो हम 8 स्टेप्स की फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। 3 plus 8 is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 3 plus 8 is equal to 11. Then 11 में अब हमें 2 ऐड करना है, तो 11, 12, 13. So 3 plus 8 plus 2 is 13. Now again 13 is a 2-digit number. वंस प्लेस पे क्या है, 3 है, एंड टेंस प्लेस पे 1 है। सो वी विल राइट 3 हियर। ये जो डिजिट्स है, जो वंस प्लेस के डिजिट्स है, उनके नीचे हमने ये वाली वंस प्लेस की डिजिट लिखी 3, एंड दिस वन वी विल राइट हियर। सो 3 plus 8 plus 2 is equal to 13. 9 plus 4 plus 6. 9 plus 4 plus 6. So first we will add 9 and 4. पहले हम 9 and 4 को ऐड करेंगे, तो 9 में 4 ऐड करो, 10, 11, 12 and 13. 9 में 4 ऐड किया तो 13 हुआ। 9 के बाद 4 स्टेप्स तक हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, तो 10, 11, 12 and 13. Now in this 13 we have to add 6. 13 में अब हमें 6 ऐड करना है, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 ऐड करने पे आंसर 19 हुआ। So how do we write it? 19 is a 2-digit number, तो वंस प्लेस पे क्या है, 9, and टेंस प्लेस पे 1 है, तो वी विल राइट 9 हियर एंड 1 विल बी रिटन हियर। ठीक है, नेवर राइट लाइक, जैसे ये 19 आया, अगर इस 19 को अगर आप ऐसे करके लिख दोगे तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज डिजिट्स की अगर प्लेसिंग सही नहीं है नंबर में तो आपका आंसर गलत है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यू मस्ट कीप दिस इन माइंड। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब आप आंसर लिखो तो डिजिट्स उसकी करेक्ट प्लेस पे होनी चाहिए। अगर आप करेक्ट प्लेस पे डिजिट्स नहीं लिखोगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ओके, 8 plus 4 plus 5. 8 plus 4 plus 5. 8 plus 4 plus 5. So that means we will first add 8 and 4. 8 and 4 को ऐड करो, 8, 9, 10, 11, 12. 8 plus 4 is 12. 12 में अभी हमें 5 ऐड करना है, तो 13, 14, 15, 16 and 17. So 12 plus 5 is 17. So again 17. ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें जो टेंस प्लेस की डिजिट है 1,
वो प्लस के नीचे आएगी. ठीक है. Let us do few more additions. 2, let us add 2 plus 7 plus 4. 2 plus 7 plus 4. Now 2 plus 7, that means 2 में 7 ऐड करना है. तो हम कितनी फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे? We will count 7 steps forward. 2 में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 2 plus 7 is 9. And 9 में 4 ऐड करो. 9 के बाद 10, 11, 12, 13. So therefore 2 plus 7 plus 4 is equal to 13. Let us add 6 plus 3 plus 5. 6 plus 3 plus 5. 6 plus 3 plus 5, that means first we will add 6 and 3. 6 and 3 add किया तो 6, 7, 8, 9. 6 में 3 add करने पे we get 9. And then now 9 plus 5. 6 plus 3 is 9. And now 9 plus 5. So 9 में 10, 11, 12, 13, 14. So 6 plus 3 plus 5 is equal to 14. Children, if you add the numbers, like here, we are first adding the first and second number, and जो भी answer आता है, we add third number in it. अगर हम let us add second and third number first, and then we add the first number. ऐसे भी करके देखते हैं. So let us add second and third number, that is 3 and 5. So 3 plus 5 कितना होगा? 3 में 5 ऐड करो. 4, 5, 6, 7, 8. 3 plus 5 is 8. अभी now इस 8 में हम फर्स्ट वाला नंबर ऐड करेंगे which is 6. तो 8 plus 6 is 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14. Again the answer is 14. Same. And if we add first number and third number first, and फिर उसमें हम अगर सेकेंड नंबर ऐड करें, ये भी करके देखते हैं. तो 6 and 5, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो 6 plus 5 is 11. And 11 में 3 ऐड करो. 11, 12, 13, 14. Again the answer is same. What I mean to say is, मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि एडिशन में अगर आप 2 नंबर्स ऐड कर रहे हो तो भी आप अगर फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर ऐड करो या सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड करो, द आंसर विल रिमेन द सेम. बिकॉज इन एनी केस कैसे भी हो आप उन 2 नंबर्स को, दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हो. चाहे फर्स्ट में सेकंड नंबर ऐड करो या सेकंड में फर्स्ट नंबर ऐड करो. Similarly, if you are adding more than 2 numbers, like here you are adding 3 numbers. अगर आप 3 numbers भी एक साथ ऐड करते हो, in that case also, उसमें भी आप चाहे फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर ऐड करके उसमें थर्ड नंबर ऐड करो, या फर्स्ट और थर्ड नंबर ऐड करके उसमें सेकेंड नंबर ऐड करो, या सेकेंड एंड थर्ड नंबर ऐड करके उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करो, द आंसर विल रिमेन द सेम. ओके. Let us do one more example. Suppose 7 plus 6 plus 5. In this sum, let us add the second and third number first. पहले हम second और third number को add करते हैं. Second number is 6 and third number is 5. तो 6 plus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 plus 5 is 11. 11 में जब आप फर्स्ट नंबर ऐड करोगे which is 7. 11 plus 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. The answer is 18. Now let us add. इसी को हम दूसरे तरीके से ऐड करते हैं. First we will add first and second number. तो 7 plus 6 is 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13.
and 13 plus 5. 13 में 14, 15, 16, 17, 18. Again the answer is same. तो बेटा एडिशन में आप 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, कैसे भी ऐड करो, द आंसर इज सेम. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. जब हम ऑनलाइन क्लास करते हैं उसमें आपको जो भी डाउट है आप उसको पूछ सकते हो. सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू चिल्ड्रन.